हेलो बैंकर्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से जीआईबी सीआईबी प्रेप पे। जहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेरिवेटिव एंड डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स से रिलेटेड यूनिट के बारे में। ओके, सो वी आर गोइंग थ्रू आवर मॉड्यूल सी विच इज ऑल अबाउट treasury management, and today we will talk about derivative product. Okay, so in our previous session where we built the connection between treasury and derivatives, so that was the last subtopic which were part of your treasury risk management. Basically, treasury they generally use derivative product to hedge their existing portfolios, or even sometime for speculation purpose also, right? So let's have a quick look about the course content. So unit number 24, which is second last unit of your module C, and that unit is called derivative products. Very important unit from this particular module. So the basic objective, derivative and treasury, OTC versus exchange traded derivatives. Then we have type of derivatives, forward, future, options and swap. Then we have interest rate and currency swap, development in Indian market, as well as RBI guidelines on credit risk exposures. Okay, so these are some subtopics which are generally part of your derivative unit. So now, first of all, I hope everybody is aware about the derivative things. So whenever we talk about derivative, it is defined as it is like derivative is a financial contract whose value is derived from or it is dependent upon an underlying asset, right? Underlying asset could be stock, commodity, currency, or any indices, and the different way, right? So derivative की अगर हम लोग बात करते हैं, so basically what does it mean? पहले तो हम definition को थोड़ा सा decode कर लेते हैं, ठीक है? So the term derivative stand for a contract whose price is derived from or it is dependent upon an underlying asset. Underlying asset could be currency, stock, market indices, and interest bearing security or a physical commodity as well. So this is a very basic definition. Whenever you'll search derivative, you'll do Google or you'll open any book, you'll find the same definition. Now what does it mean? इसका मतलब क्या हुआ आपका, ठीक है? जैसे suppose that there is a XYZ security, right? So XYZ company whose current market price, cash price is suppose that 500, right? अब this is an underlying asset, ठीक है? ये आपका क्या है? Underlying asset है. Based on this particular underlying asset, we generally calculate prices in future also, ठीक है? तो आपका जैसे there are four type of derivative: future, forward, options and swap. In case of equity derivatives, we have 3 months contract are available. In case of commodity and currency derivatives, there are 12 months contract are available for exchange traded derivative. For in case of OTC over the counter, it can be like 15 days, it can be 1 month, 1 year, or it can be more than 1 year also. But whenever you see the exchange traded derivatives, they are only 12 months contract are available at a time in the market for currency and commodity. For equity, there are 3 months contract are available. Like let's say this is the current market price and we are in September months. So September, we have September prices, we have October, and we have November. Okay, in case of equity derivative. In case of commodity and currency, you'll see 12 months contract at a time. Okay. तो जैसे सितंबर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट आपका खत्म होगा, सो एक्सपायरी लाइक इन केस ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव वी हैव लाइक लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ विच इज एक्सपायरी डेट, ठीक है? तो जैसे ही आपका सितंबर मंथ का लास्ट थर्सडे आएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सपायर होगा, एंड इधर दिसंबर मंथ का ऐड हो जाएगा, एंड आपका सितंबर विल एक्सपायर इन दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है? तो अब जैसे सपोज दैट बेस्ड ऑन द कैलकुलेशंस, calculation are very complex in case of derivative. So suppose that if you talk about the XYZ future contract which are available for 3 months, it is showing somewhere 510. It is suppose that 517 and it is 525, right? Suppose that this high volatile currency, high volatile underlying asset, तो जहां पे आपको ये तीन प्राइसेस आपका फ्यूचर में मिल रहे हैं. So now
now again we'll come to the definition. Derivative are financial contract whose value is derived from. So this value is derived from or dependent upon underlying asset, and underlying asset is XYZ. Okay, like we have different model. So there is one model called SCRT. I hope most of you heard about this one. Okay. So where S is equal to S is spot price. Okay. So in this case it is 500. E is exponential value, that is 2.71828, and R is required rate of return, suppose that it is 8%, and T is time duration. If you are calculating for 1 month, for September it is 1 divided by 12, for October 2 divided by 12, for November it is 3 divided by 12, right? So with this calculation we reach to this prices or these prices, right? So now if there is any change in this price, if there will be any changes in the underlying prices of this, so अगर ये आपका बढ़ता है तो ये भी आपके क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, और अगर ये आपका इसके प्राइसेस घटते हैं तो इनके प्राइसेस भी आपका क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, ठीक है. सो डेरिवेटिव इज समथिंग लाइक जैसे देयर इज अ रिलेशन बिटवीन मिल्क एंड कर्ड. सो मिल्क इज डेरिवेटिव और अंडरलाइन फॉर डेरिवेटिव कर्ड, ठीक है, कर्ड इज डेरिवेटिव, ठीक है. तो अगर मिल्क के प्राइसेस बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली कर्ड के प्राइसेस भी बढ़ेंगे, और अगर मिल्क के प्राइसेस घटेंगे तो कर्ड के प्राइसेस भी घटेंगे, ठीक है. सिमिलरली गोल्ड, गोल्ड क्या आपका, अगर फिजिकल गोल्ड आपका कमोडिटी, उसके प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो उसके जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है उनके प्राइसेस भी इंक्रीज होंगे. दैट मीन्स देयर इज हाई डिमांड, एंड अगर आपका डिक्लाइन होता है, सप्लाई होता है, तो उसके प्राइसेस भी घटेंगे. सो डेरिवेटिव आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स these whose value these values are depend upon an underlying asset and they are derived from the underlying asset itself. Okay, that is the meaning of this particular definition. I hope this is clear. Okay. So underlying asset could be, could be any interest rate or bonds, stock, currencies, market indices, or commodities as well. Very simple, right? So now if you talk about the relation between derivative and treasury. So nowadays we are like we are part of there are like, if you talk about the financial market, they are highly interconnectedness among each others, right? तो बहुत अच्छा combination आपको मिलेगा, money market and capital market, money market and forex market, and treasury is the person who generally build this interconnection among the different markets, ठीक है. तो यहाँ पे आपका ऐसे different markets के अंदर आपका जो कनेक्शंस है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है. सो ट्रेजरी का रोल हमने समझा. They generally manage ALM, they do the risk management, and they find out the arbitrage opportunities from the market, and they get in they generally invest the surplus from the from one market to another market, ठीक है. तो अगर हम लोग बात करें डेरिवेटिव मार्केट प्रोडक्ट वाइडली यूज्ड बाय बैंक ट्रेजरीज. Treasury derivatives use derivative for managing risk, including ALM, to cater to a requirement of the clients and more particularly of the corporate customers to trade to take a trading position in derivative product, while cross currency derivative exists for long, and rupee derivative are of fairly recent origin and use certain derivative product to use is still regulated by RBI. Okay? There are three derivative. These are currency derivative, interest rate derivative, and your credit derivative. So these are get regulated by RBI, rest are get regulated by SEBI itself. ठीक है. तो जैसे let's say we have surplus ALM, ठीक है. जैसे हमारे पास let's say our receivable is scheduled for first and payables are on 15, ठीक है. तो 15 दिन के लिए हमारे पास surplus money है. So what treasury will do, they'll invest that particular money in certain, जैसे उसने derivative में भी invest कर सकता है if they have some arbitrage opportunities, or even like let's say if like to protect our existing portfolios, so derivatives are the like most favorable product, ठीक है, because they have high leverage value, ठीक है. तो इसमें आपको कोई additional amounts या जो भी required हो वो भी आपका जो margin होता है that is very smaller size, ठीक है. तो वो आपका यहाँ पे use किया जाता है, ठीक है. So regulators of derivatives, so we have two major regulators, one is SEBI, another one is RBI. So RBI which generally regulate three derivatives only, ठीक है. So these are interest rate derivatives, credit derivatives, and your foreign currency derivative, ठीक है. So different derivative instruments are
permitted and regulated by various regulators like RBI, SEBI and FMC. So now FMC get merged with SEBI only. So अब FMC वाला जो commodities derivative थे वो पहले FMC regulate करता था. In September 2015 FMC get merged with SEBI. तो उसके बाद आपका ये जितने भी derivatives हैं they get regulated by that means commodities derivative are also regulated by SEBI itself. ठीक है. So RBI is empowered to regulate interest rate derivative, foreign currency derivative and credit derivative. SEBI regulate stock market and FMC regulate commodities future. So now like FMC merge with SEBI, तो ये भी आपका किसके द्वारा regulate होते हैं? SEBI के द्वारा. ठीक है. So now the next one is this part is very important. I hope most of को इसके बारे में information होगा. ठीक है. One is we have two categories of derivative. One is OTC. Another one is exchange traded derivative. So let's understand this particular part clearly. Okay. So like if you talk about the derivatives, so we have four type of derivative. First one is forward. Then we have swap, the very important one for your examination. We have future derivative, and we have options. Okay. So options. So now like these are four type of derivatives. They are majorly categorized among two part. Okay, between two part. One is OTC, over the counter, and these are exchange traded derivative. ठीक है. So अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है चीजों का. ठीक है. So forward and future are exchange trade OTC. Sorry, forward and swap are OTC, and future and options are exchange traded derivative. So like अब यहाँ से if you understand difference between OTC or OTC and exchange traded derivative, you know the difference between future forward versus future, forward versus option, swap versus future, swap versus options. ठीक है. तो इसलिए मैंने आपका ये चार्ट बनाया है. ठीक है. अब देखो क्या होता है whenever we talk about OTC, so these are private contract between two parties. ठीक है. जनरली आपका जो इंस्टीट्यूशन है, दो बैंक या बैंक एंड सम अदर एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स या एनी अदर इंस्टीट्यूशन, सो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट है, सो दे आर कस्टमाइजेबल. ठीक है. सो इनको आपका पार्टीज, जैसे दो पार्टीज, पार्टी ए एंड बी, दे कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड वांट्स. ठीक है. In case of exchange traded derivative, these are standardized in nature and they are standardized by the exchange. They get traded in regulated stock exchanges like NSE, आपका BSE, तो जहां पे ये आपके ट्रेड होते हैं और इन्हीं के द्वारा इनका स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है. स्टैंडर्डाइजेशन मींस देयर कॉन्ट्रैक्ट साइज, देयर एक्सपायरी डेट और देयर टिक साइज, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द एक्सचेंज. ठीक है. देयर इज like these are less liquid. ठीक है. These are less liquid. Okay, so basically OTC contract are less liquid, they are highly liquid. ठीक है. These are highly liquid. Why so? ठीक है. ये आपका क्यों मैं बोल रहा हूँ. ठीक है. Because here we have only two parties, दो parties हैं आपका. ठीक है. Buyer and seller. So यहाँ पे आपका liquidity automatically कम हो जाएगी. Here we have number of buyers, number of sellers. ठीक है. तो जहाँ पे अगर आप बात करते हैं प्राइस ट्रांसपेरेंसी की, सो प्राइस ट्रांसपेरेंसी इज वेरी हाई एंड हियर वी हैव वेरी लो बिकॉज इट इज अ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट. राइट. सो यहाँ पे आपका लिक्विडिटी भी क्या होता है, देयर आर नंबर ऑफ बायर्स, नंबर ऑफ सेलर्स व्हिच जनरली क्रिएट डाइवर्सिटी एंड व्हिच जनरली क्रिएट लिक्विडिटी इन दिस पर्टिकुलर वन. ठीक है. तो इनका बेनिफिट क्या है कि दे कैन बी कस्टमाइज एज पर द रिक्वायरमेंट्स. ठीक है. जैसे एक्सपायरी डेट है, आपका अमाउंट है, अदर्स, दीज आर द वन. तो अगर आप ये चीजें समझते हैं, if examiner asks you question based on future versus forward or swap versus option or swap versus future, this versus this, और आपका जो भी एरियाज है. ठीक है. तो इस तरीके से जिनको आप लोग ध्यान रखिएगा. चलो तो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं थोड़ा सा इसको. ठीक है. सो आपका OTC contract are traded directly between two eligible parties with or without the use of intermediary and without going through any exchange. ठीक है. An exchange. The parameter of contract like size, maturity, etc. are not standardized. That means that is customized and are mutually agreed between the parties of the contract. Exchange traded derivatives are traded on an exchange. The maturity and size of product are standardized by the exchange. Trade in derivative product can be
done only through a member of exchange by paying initial margin and maintaining M2M, ठीक है, मार्क टू मार्जिन, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल मार्जिन भी नहीं होता, यहाँ पे आपका M2M बेसिस पे आपका मैनेज किया जाता है। और ट्रेडिंग पार्टनर मींस शेयर ब्रोकर्स एंड अदर्स, जिनके थ्रू हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अगर रिस्क वाइज भी देखते हैं तो दिस इज हाई रिस्क की, देयर इज काउंटर पार्टी रिस्क इन्वॉल्व इन दिस केस। There is no counterparty risk because exchange or stand the guarantee, because they are asking to maintain you the margin or the margin account, ठीक है, on M2M basis। अब एक और चार्ट जो आपके उसमें दिया गया, OTC product are different from exchange traded derivatives, तो these are OTC। OTC product are offered by bank and financial institution, need to authorize bank in India, contract date, amount and terms are desired by the clients, private contract. Price is quoted on by the bank, adding the margin to the market code. Security, cash management, cash margin, charges on asset, etc. at M2M discretion based on client status. Counterparty risk, bank risk is present but it is a party remote risk. Yeah. Settlement is mostly by physical delivery, okay, mostly used for hedging underlying risk आपका, ठीक है, जैसे करेंसीज में आपका एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स के द्वारा यूज किए जाते हैं। Exchange traded आपका, so future contract are traded only on recognized stock exchanges. Size of contract is standardized with preset settlement date for the specific terms. Transparent pricing based on screen based trading. Exchange collect daily cash margin. No counterparty risk. Mostly net settled by cash and mostly used for ट्रेडिंग एंड स्पेक्यूलेशन पर्पस, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज पता है तो आपको फ्यूचर वर्सेस फॉरवर्ड, फ्यूचर वर्सेस हैज या अदर्स, इनके बारे में पता है, ठीक है। सो नाउ लाइक दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है, एंड एज वेल एज इंटीग्रेटेड डेरिवेटिव्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। सो आई होप आपने बहुत बार पढ़े होंगे। सो नाउ वी विल गो थ्रू दिस पर्टिकुलर वन इन डिटेल। So the very first, like we have four type of derivative: future, forward, options and swap, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपका, ठीक है। सो दीज आर द फोर टाइप ऑफ डेरिवेटिव: फ्यूचर, ऑप्शंस, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शंस एंड स्वैप, ठीक है। तो ये चार टाइप के डेरिवेटिव। सबसे पहला आपका फ्यूचर, ठीक है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था XYZ लिमिटेड का, ठीक है। तो फ्यूचर आर एक्सचेंज ट्रेडेड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट। अब एक्सचेंज ट्रेडेड है तो वो कंडीशंस आपका, दे आर there is no counterparty risk. They parties need to pay initial margin and they have to maintain that margin on M2M basis, ठीक है, mark to market basis, ठीक है, mark to market basis. These are standardized contract traded in regulated stock exchanges and they have a fixed contract size and इसके अलावा जैसे आपका लॉट साइज इन अदर्स, दे गेट डिसाइडेड बाय द एक्सचेंज इटसेल्फ, ठीक है। So a future contract is an agreement between two parties to buy or sell an asset at a certain time in future at a certain price. अब अगर आप फ्यूचर और फॉरवर्ड की डेफिनेशन देखोगे, you will find the same definition, ठीक है। The only difference is future is exchange traded and forward is OTC, right? These are basically exchange traded standardized contract. The exchange stand guarantee to all transaction and counterparty risk is largely eliminated in case of future contract, ठीक है। So by purchasing the right to buy, an investor expect to profit from an increase in the prices of underlying asset. By purchasing right to sell, the investor expect to profit from the decrease in the prices of underlying asset, ठीक है। तो ओपन पोजीशन कैन बी बाय और इट कैन बी सेल, ठीक है। जैसे अगर आप कभी भी डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं, ठीक है, सो सपोज दैट देयर इज अगेन XYZ लिमिटेड, ठीक है, XYZ का आपका and its spot price, current market price of this particular security is suppose that 100 rupees, ठीक है। तो ये आपका 100 रुपए में ट्रेड हो रहा है। सो नाउ वी हैव टू इन्वेस्टर X, ठीक है। सो इन्वेस्टर X आपका जिसका परसेप्शन इज बुलिश अबाउट दिस, ठीक है, उसको लगता है कि मतलब ही इज बुलिश अबाउट दिस XYZ लिमिटेड। इसको लगता है कि आने वाले समय मींस लेट्स से सितंबर एंड तक या फिर अक्टूबर
एंड तक या फिर आपका नवंबर मंथ की एक्सपायरी तक, ठीक है। देयर आर 3 मंथ कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल, ठीक है। सो सपोज दैट एज पर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ मिस्टर एक्स, prices of XYZ Limited will go up to 120 by the और बिफोर द एंड ऑफ अक्टूबर मंथ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अक्टूबर मंथ से पहले इसका जो प्राइसेस हैं 2024 से पहले इसके प्राइसेस आपका 120 से ऊपर चले जाएंगे। सो व्हाट ही विल डू, ही विल बाय, मतलब आपका ये क्या करेगा, जैसे सपोज दैट करंट मार्केट प्राइस ऑफ अक्टूबर इज सपोज दैट 107, ठीक है, 107 रुपए चल रहा है, इसकी एक्सपेक्टेशन है कि 120 रुपए से ऊपर जाएगा। सो मिस्टर एक्स विल बाय द अक्टूबर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ दिस XYZ लिमिटेड, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आपका ये रहेगा, ठीक है। दूसरा, देयर इज अनदर पर्सन कॉल्ड मिस्टर वाई, ठीक है। सो मिस्टर वाई हु हैव लाइक इसका जो थॉट है, इसको लगता है कि ही हैज अ बियरिश अप्रोच, ठीक है। इसको लगता है कि आने वाले समय में इसके जो प्राइसेस हैं, करंट मार्केट प्राइसेस हाउ मच, आपका 100, ठीक है। इसको लगता है कि आने वाले समय में इसका जो प्राइस है इट विल कम डाउन टू सपोज दैट 80, ठीक है, बाय द एंड ऑफ नवंबर मंथ के कॉन्ट्रैक्ट है, इसके प्राइस आ जाएंगे कहाँ पे, 80 पे आ जाएंगे। तो व्हाट ही विल डू, ही विल सेल दी नवंबर मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ ही विल सेल, ये क्या करेगा, आपका सेल करेगा नवंबर मंथ के फ्यूचर को, एंड ही विल बाय अक्टूबर मंथ कॉन्ट्रैक्ट आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो रहेगा, एंड अकॉर्डिंगली देयर पे ऑफ विल बी डिसाइडेड, ठीक है। तो यहां पे कुछ इस तरीके से आपका, अब जब हमारा लॉन्ग डेरिवेटिव होता है, ठीक है, लॉन्ग फ्यूचर होता है, ठीक है। सो पे ऑफ की अगर हम लोग बात करें, सो इफ वी हैव अ लॉन्ग पोजीशन, ठीक है, अगर आपका लॉन्ग है, सो द लाइक पे ऑफ इज कि जहां पे बेसिकली मतलब ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट आपका होगा, ठीक है, प्रॉफिट होगा। और अगर आपका शॉर्ट पोजीशन है तो नीचे आएगा तो आपका क्या होगा, अगर आपका सेल पोजीशन है तो ये आपका प्रॉफिट एरिया होगा, मतलब 100 अभी जितना भी प्राइस है उससे नीचे जाएगा तो प्रॉफिट होगा। अगर इसके एक्सपेक्टेशन मीट करेंगे जितने जल्दी उतना जल्दी प्रॉफिट आपका स्टार्ट होगा। बुल के केस में आपका जितना ऊपर जाएगा उतने जल्दी आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। सो परचेजिंग द राइट टू बाय इन केस ऑफ लॉन्ग एंड इट इज इन केस ऑफ शॉर्ट, ठीक है। इस तरीके से फ्यूचर आर ऑल्सो ऑफन यूज टू हैज द prices, the price movement of the underlying asset to help prevent losses from unfavorable price changes. There are tradable future contract for almost any commodity imaginary such as grain, livestock, energy and others, ठीक है। तो सारे commodities के future आपको मिलेंगे, आपका करेंसीज के फ्यूचर मिलेंगे, आपको इक्विटी फ्यूचर, इंडाइसेस फ्यूचर, ये सारे जो मार्केट में मिलेंगे। सो दे आर जनरली यूज फॉर हेजिंग पर्पस एज वेल, ठीक है। तो हेजिंग में आपका कैसे इसका इस्तेमाल होता है, सपोज दैट यूएसडी आईएनआर, ठीक है, यूएसडी आईएनआर, ओके, विल टेक एन एग्जांपल ऑफ गोल्ड आपका, ठीक है। सो जहां से आप आसानी से रिलेट कर पाएंगे, सो गोल्ड आपका, ठीक है, बिफोर बजट एंड पोस्ट बजट, ठीक है। तो गोल्ड आपका, जैसे सपोज दैट गोल्ड का prices was 75,000 per 10 gram, ठीक है। That time before budget it was somewhere this, ठीक है। And अब बजट में you have some analysis कि यार जैसे बजट के दौरान आपका क्या हुआ, गवर्नमेंट दे कम अप विद द थॉट कि जो गोल्ड के ऊपर जो कस्टम ड्यूटीज है उनको डिक्रीज कर दिया गया, ठीक है, उनको कम कर दिया गया। अब कस्टम ड्यूटीज कम होंगी, दैट मीन्स देयर विल बी मोर सप्लाई एंड प्राइसेस विल गेट डिक्लाइन, ठीक है। अब ऐसा आपका है, ठीक है। Suppose that there is a bank who have 100 crore rupees gold portfolio, ठीक है, एज अ प्रोप्राइटरी पोजीशन। आपके बैंक के पास 100 करोड़ रुपए का गोल्ड का प्रोप्राइटरी पोजीशन था, जिसका करंट मार्केट प्राइस आपका जो स्पॉट रेट चला था वो चला था आपका 10, ठीक है, 75,000 पर 10 ग्राम। अब क्या हुआ, आपको ये चीज पता चली यार गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटीज कम कर दी और हो सकता है नियर फ्यूचर में आपका गवर्नमेंट उसको और कम कर सकती है, बिकॉज दे हैव टू मेक पेमेंट्स ऑफ सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स, ठीक है, गोल्ड बॉन्ड्स, सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स के पेमेंट करनी है। तो अगर ऊपर रहेगा, ऊपर करेंगे तो सरकार को बहुत पैसा देना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, अब नाउ यू आर इन अ ट्रैप सिचुएशन। पहला, यू हैव टू ऑप्शन, ईदर यू कैन एग्जिट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वन, आपने 100 करोड़ रुपए का गोल्ड बेचा और निकल गए, ठीक है, एक तो ये हो सकता है। दूसरा, सेकेंड ऑप्शन व्हाट यू हैव, what you can do in the market, ठीक है। तो आपको लगा this news will make an impact on gold prices for 2-3 months only, ठीक है, आपको 2-3 महीने तक इसका प्राइसेस पे रहेगा, दोबारा से ये बाउंस बैक होगा, गोल्ड है बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। you have this type of perception, so what you can do,
जैसे ये सिचुएशन आपके हो सकती है, सो यू हैव टू लाइक आप इसका जो फ्यूचर है, ठीक है, सो यू कैन सेल द फ्यूचर। अब यहाँ पे आपकी बाय पोजीशन है, हियर योर लॉन्ग पोजीशन इज बाय, सो हियर यू हैव टू मेक अ पोजीशन ऑफ सेल फ्यूचर ऑफ गोल्ड, ठीक है। आपने क्या करा, जो सपोज दैट अगस्त 2025 का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको सेल कर दिया, ठीक है, 100 करोड़ रुपीज का विदाउट इन्वेस्टिंग अ सिंगल रुपी। क्यों इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा? बिकॉज यू ऑलरेडी ओन अ गोल्ड वर्थ रुपीज 100 करोड़ रुपीज इन योर कैश, ठीक है, आपके पास 100 करोड़ रुपए का गोल्ड का भंडार है, ठीक है। सो अब इससे क्या होगा ना, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर वी हैव अ हेज पोजीशन, ठीक है। अब इसके बाद गोल्ड प्राइसेस आपका 75 से आपका 50,000 हो जाए तो 1 रुपए का नुकसान नहीं होगा, ठीक है, और 75 से 1 लाख हो जाए 1 रुपए का प्रॉफिट नहीं होगा। सो हेजिंग इज अ सिचुएशन विच जनरली वी कैन से मेक अ बैंड, ठीक है, जो वो आपका अपसाइड और डाउनसाइड दोनों पोटेंशियल को ब्लॉक कर देता है। क्यों? अगर सपोज दैट इन सिचुएशन वन, ठीक है, सिचुएशन वन में आपका क्या होता है, गोल्ड प्राइसेस केम डाउन टू 50, ठीक है, तो यहां पे आपका 50 अगर सच में आ गया, यहां पे आपने सेल कर रखा है, तो यहां पे आपका 25,000 पर 10 ग्राम का प्रॉफिट होगा, ठीक है, और इतना ही यहां पे नुकसान होगा, ठीक है, 25,000 पर 10 ग्राम का आपका क्या होगा, यहां पे नुकसान होगा, ठीक है, लॉस आपका होगा, ठीक है। अगर ये 1 लाख हो जाता है, ठीक है, 1 लाख हो जाता है, तो यहां पे आपका अगर ये बढ़ के 1 लाख हो जाता है, ठीक है, पर 10 ग्राम, तो यहां पे आप 25,000 पर 10 ग्राम गेन करोगे, और इतना ही आप इस सिचुएशन में क्या करोगे, लॉस बनाओगे आपका दिस, ठीक है। तो दिस इज आपका, ये आपका कैश में था, और ये आपने क्या किया, उसके मतलब अपनी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने उसका फ्यूचर का इस्तेमाल किया और अपनी प्रोफाइल को आपका क्या कर दिया, हेज कर दिया, ठीक है। बट हेजिंग का अब यहाँ पे ना बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं, ठीक है, विच आर नॉट पार्ट ऑफ योर कोर्स करिकुलम, अदरवाइज लाइक जैसे अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो स्ट्रेडल, स्ट्रेंगल, ऐसे बहुत सारी, ठीक है, हम लोग बहुत सारी टेक्निक्स का आपका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बट ये एक नॉर्मल लॉजिक आपका। अब यहाँ पे जनरली क्या होता है, जो एक्सपर्ट है ट्रेजरी, जो आपका चीफ डीलर्स है, ठीक है, वो क्या करेगा, सपोज दैट दिस न्यूज केम इन द मार्केट, ठीक है, गवर्नमेंट ने इम्प्योरिटीज कम करी, एक बार और कम कर दी, सच में ये 50,000 आ गया, ठीक है। सो दिस इज द आपका 50,000 मीन्स दिस इज द बेस, इससे नीचे गोल्ड नहीं आएगा एज पर द एनालिसिस इन ऑल। सो व्हाट दे विल डू, दे विल एग्जिट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर, यहाँ पे इन्होंने सेल किया, बाय करेगा, इस कॉन्ट्रैक्ट से खत्म कर देंगे। अब हमारी सिर्फ एक ओपन पोजीशन है जिसमें अभी तक हमारा नोशनली मतलब कोई भी लॉस नहीं है, ठीक है। नोशनल लॉसेस लाइक यहाँ से अगर हमने 25,000 कमाया था तो यहाँ पे 25,000 हमने गवाए, तो हम लोग अभी बराबर पे हैं। अब सच में अगर आपके एनालिसिस सही है, यहाँ से अगर गोल्ड प्राइसेस बाउंस बैक लेते हैं, देन यू विल स्टार्ट मेकिंग प्रॉफिट, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो स्ट्रेटेजीज आपका मार्केट में काम करती है, ठीक है। सो हेजर, सो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट यूजेस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। Hedger, they generally use for hedging purpose. I hope now you can easily relate this. These are businesses or individuals that use future contract for protection against volatile price movement in the underlying commodity as gold. Speculators, जो आपका ट्रेडिंग मतलब फायदा उठाते हैं, ठीक है, आर इंडिपेंडेंट ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, सम ट्रेडर्स यूजिंग देयर ओन मनी और सम यूजिंग ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट्स और ब्रोकरेज फर्म्स। Speculate trade futures contract use as they would trade in a stock or bond। जैसे होता है ना, लोग बोलते हैं ना बहुत सारे, मतलब इंडिया में तो फिनेंस का बहुत ज्ञान मिलता है, ठीक है, कि आप निफ्टी परचेज करके छोड़ दो, ठीक है, उतना इन्वेस्टमेंट रखो कि आप एक निफ्टी को ओन करो, उतना करके मार्केट में छोड़ दो, ठीक है, निफ्टी ग्रो करता आया है, ग्रो करता जाएगा, मतलब दिस काइंड ऑफ माइंडसेट, मतलब अनटिल अनलेस आपका कोई रिसेशन नहीं आता, 4-5 साल में तो ऐसे ही लग रहा है, सेंसेक्स आपका है, ठीक है, या अदर्स, तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स। सो अगर आपको लगता है कि यार हाँ आने वाले समय में इंडियन स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा तो बाय करके छोड़ दो, लगता है डूबेगा तो सेल करके छोड़ दो, ठीक है, तो बट दैट M2M यू हैव टू मेंटेन आपका, ठीक है। Clearing houses, in practice a clearing house is used to facilitate future transactions are so by being on the other side of all traders, a clearing house is a financial institutions फॉर्म स्पेशली टू फैसिलिटेट डेरिवेटिव ट्रांजेक्शंस आपका, जो बाय सेल की आपका चीजों को देखता है, ठीक है। मार्जिन इज बेसिकली, मार्जिन अकाउंट आपका क्या होता है, जैसे हमने कोई चीज परचेज की, ठीक है, जैसे देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट हुज वैल्यू इज 1 करोड़, इसका मार्जिन वाज सपोज दैट 10%, ठीक है, दैट मींस बाय पेइंग 10 लाख रुपीज वी एंटर्ड इनटू दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, हमने बाय किया,
अब आपको एम टू एम बेसिस पे इसको मेंटेन करना है। अब अगर इसके प्राइसेस ऊपर जाएंगे, ठीक है, अगर इसके प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो आपका मार्जिन क्या होता रहेगा, मार्जिन अकाउंट आपका क्रेडिट होता रहेगा, ठीक है। जैसे इसकी वैल्यू 1 करोड़ से 1.10 करोड़ हो गई, सो दैट इज अ स्ट्रेट प्रॉफिट ऑफ 10 लाख, आपका 10 लाख रुपए का फायदा है। बट एम टू एम कहां पे मेंटेन करना होता है, अगर इसके प्राइसेस आपका 1 करोड़ से नीचे आने लग गया तो आपके मार्जिन की वैल्यू कम होती जाएगी। यू हैव टू मेंटेन एट ए टाइम 10 लाख रुपीज मार्जिन। जैसे आपका मार्जिन 1 लाख से 90,000 सॉरी 9 लाख हो गया, सो यू हैव टू डिपॉजिट 1 लाख रुपीज टू दी क्लियरिंग हाउस, ठीक है। आपको 1 लाख रुपए आप इस कॉन्ट्रैक्ट में बने रहने के लिए 1 लाख रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव मेड दिस लॉस, क्योंकि ये आपका लिवरेज है आपका। आपने 1 करोड़ रुपए की चीज खरीदी है 10 लाख रुपए देके, ठीक है। अब इसका मतलब नहीं कि अब वो मतलब 1 करोड़ से आपका जब तक 10 लाख से नीचे नहीं आएगा तब तक आप उसको ऑन करोगे, नो, ठीक है। आप अगर ये चीज हो रही है, आपका 10 लाख की आपका मार्जिन है which is get decided by exchange, अगर आपका मार्जिन अकाउंट 9 हो गया, so you have to deposit that gap amount, ठीक है। so अगर हम लोग यहाँ पे देखें, सीधा एग्जांपल पे आते हैं। assume that margin for rice contract is 5% and contract by 10 टन, ठीक है, 10 टन का लॉट साइज है। फ्यूचर इज क्लियर थ्रू अ क्लियरिंग हाउस मेंबर एट 6,000 रुपीज पर टन, ठीक है। तो 6,000 इंटू 10 आपका निकालो, 60,000 टन आपका हो जाएगा, ठीक है। 20 फ्यूचर उसने खरीदे हैं, तो 20 जैसे 6,000 10 इंटू 20 फ्यूचर, तो आपका 12 लाख का आपका ये कॉन्ट्रैक्ट लॉट साइज आपका हो गया, ठीक है। 12 लाख का 5% इज मार्जिन, तो इसको कितना पे करना पड़ेगा इनिशियली, 60,000 रुपीज, ठीक है। सपोज द नेक्स्ट डे फ्यूचर प्राइसेस इंक्रीजेस, आपका ये बढ़ गए, आपका मतलब कितना था 6,000 से 6,100 हो गया, तो प्रॉफिट है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। सिंस द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट इज द लॉन्ग पोजीशन इन 5 कॉन्ट्रैक्ट एंड प्राइसेस इंक्रीज विल लीड टू अ गेन, सो इन दिस केस गेन विल बी आपका गेन इक्वल टू डिफरेंस आपका 100 इंटू कितना कॉन्ट्रैक्ट था इसका आपका 20, 100 इंटू 10 इंटू 20, दैट इज द प्रॉफिट, तो कितने का प्रॉफिट है, 20,000 का प्रॉफिट है। The gain is added to the margin amount and margin account balance will be 60,000 plus 20,000, it is 80,000, ठीक है। Next day the prices came down from this to this, तो अब इसका अपोजिट इंपैक्ट रहेगा, तो अभी इसका मार्जिन अकाउंट कितना हो गया 80,000, ठीक है। 60,000 इसने जमा किया था, जैसे इसने आपका यहां से इंक्रीज हुआ तो जो भी क्रेडिट हुआ था वो अभी घट गया है, दूसरा सिचुएशन ये है, ठीक है। तो अगर ये कितना हो गया है, लॉस इज इक्वल टू आपका 30,000, ठीक है। तो नाउ प्रॉफिट था 20,000 का, आपका लॉस है 30,000 का, 10,000 का इसका क्या होगा, गैप होगा, ठीक है। So 61,000 this equal to 30,000 is subtract the account balance is 80,000. So balance of account after second day will be 50,000 only, right? So इस तरीके से जो आपके इसके पोर्शंस बने रहेंगे, ठीक है। मार्जिन अकाउंट ऑपरेशन ये जनरली मैंने मतलब if you are like if you do not have your that elective paper risk management, this is the course content of risk management actually, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है इसलिए मैंने रखा था, ठीक है। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट इलेक्टिव नहीं है तो आपकी उसमें इतना डिटेल में नहीं दिया गया, बट हाँ अगर आप रिस्क मैनेजमेंट आपका इलेक्टिव पेपर है तो वहां पे डेरिवेटिव्स को इस तरीके से आपका डिफाइन किया गया, ठीक है। सो मार्जिन अकाउंट ऑपरेशन, द ऑपरेशन ऑफ मार्जिन अकाउंट एंड मार्जिन अकाउंट कैन बी समराइज जैसे on the day of contract is entered into credit the account with the initial margin, जैसे 60,000 के साथ इसने किया था आपका, जो अब पिछला वाला केस हमारा था, ठीक है, यस, और यहाँ पे आपका 10 लाख था। दूसरा on daily basis compute gain and losses on future contract entered into, if there is any losses debit the loss from the margin account, if there is any gain to profit this, as long as balance in margin account is above the variation amount margin amount, the trader does not need to do anything, मतलब 60,000 था 80,000 हो गया तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। If the balance in margin account decrease below the variation that 60,000 से नीचे हो जाता है, will receive a margin call, ठीक है। मार्जिन कॉल आपका रिसीव करने की जरूरत है, एक मूवी भी थी इसके ऊपर, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। On receiving the margin call, trader need to provide the additional fund to the broker. Additional fund is initial margin 60,000 minus आपका जो 10,000 हुआ था, ठीक है। पहले 20,000 का प्रॉफिट हुआ था, 30,000 का नुकसान हुआ, तो 10,000 का गैप दैट वी यू नीड टू प्रोवाइड टू द ब्रोकर, राइट। When the additional money is paid, it will be credited in margin account. If additional money is not provided, the broker has right to
अनवाइंड द ओरिजिनल पोजीशन, वो चाहे तो आपके यहाँ पे उस पोजीशन को एग्जिट करा सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर वो अभी नहीं करेगा, कल के डेट में और मार्केट नीचे आ गया तो आपका नुकसान क्या होता जाएगा, और बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो दैट इज डाउन टाइप ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहाँ कहाँ पे मिलेंगे, ये आपका कॉमोडिटीज में हो सकती है, ठीक है, जैसे आपका गुआर गम है, इसके अलावा टर्मरिक है, कोरिएंडर है, इन सब के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल। अगर आपने कभी आपका ट्रेडिंग टर्मिनल्स पे देखा होगा तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट आपका, जैसे यहाँ पे कुछ नाम भी लिखे हैं जैसे मिल्क, कॉफी, ये अदर्स आपका बहुत सारे कॉमोडिटीज जो ट्रेड होती हैं, ठीक है। एनर्जी में आपका, एनर्जी के अंदर आपका जैसे क्रूड ऑयल बहुत चलता है, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर आपका क्रूड ऑयल है और नेचुरल गैस, दो सॉरी, ठीक है। सो क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस आपका ये दो आपको मिलेंगे, ठीक है। बुलियन में अगर आप देखते हैं तो आपका जैसे गोल्ड सिल्वर है, ठीक है, बुलियन के अंदर आपके आते हैं, ठीक है। अदर कॉमोडिटीज जैसे आपका लेड, जिंक, क्रूड ऑयल, ये सब। सो मेटल में आपका तो जैसे आपका गोल्ड, स्टील, कॉपर, ये पूरे मेटल के अंदर, इसमें भी बुलियन आपका गोल्ड एंड सिल्वर के लिए यूज किया जाता है। करेंसी फ्यूचर आपको मिल जाएगा अलग अलग करेंसीज में। फाइनेंशियल फ्यूचर आपका जैसे इंडाइसेस हैं या स्टॉक्स हैं, ठीक है, जैसे रिलायंस का फ्यूचर है, टीसीएस का है, या फिर सेंसेक्स या निफ्टी का फ्यूचर आपका है, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स आई विल कवर दिस पर्टिकुलर, अच्छा ओके, थोड़ा सा रह गया, ठीक है। इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स आपका बेसिकली जहां पे एक नोशनल वैल्यू में आपका ट्रेड होता है, जैसे सपोज दैट देयर इज वन इंडेक्स, जैसे आपका रेपो रेट है, ठीक है। सो रेपो, करंट रेपो रेट इज 6.35%, ठीक है। अब देयर आर टू पार्टीज, ठीक है, ए जिसको लगता है कि आने वाले समय में रेपो रेट विल कम डाउन, बी आपका जिसको लगता है कि आने वाले समय में रेपो रेट विल गोस अप, ठीक है। ये दो पार्टीज, दोनों की अलग अलग एक्सपेक्टेशंस हैं। ये एक नोशनल अमाउंट पे एंटर करे। अब ऐसा अगर एक्सपेक्टेशन है तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया जहां पे ए बोल रहा है कि मैं इतने पे इसको सेल कर रहा हूं, बी कह रहा है मैं इतने पे इसको बाय कर रहा हूं, ठीक है। सो ये आपका सेल कर रहा है और ये आपका बाय कर रहा है, एक नोशनल अमाउंट। सपोज दैट नोशनल अमाउंट इज 1 करोड़। अब दिस कॉन्ट्रैक्ट इज सपोज फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। 6 महीने बाद अगर आपका जैसे सपोज दैट ये सच में नीचे आ गया, 6 से आपका आ गया कितना, 6% पे आ गया, तो 0.35 इंटू 1 करोड़ का प्रॉफिट होगा किसका, ए का, ठीक है। और अगर ये ऊपर चला गया, इससे जितना भी ऊपर जाएगा वो फायदा दिलाएगा किसको, आपका इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव, जो जैसे बॉन्ड्स या अदर्स इनमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। एंड इंटरेस्ट रेट फ्यूचर इज financial derivative that allow exposures to change in interest rate, ठीक है, currency derivatives या others, ठीक है। Interest rate future prices move inversely to interest rate. Investor can speculate on direction of interest rate with interest rate futures or else use the contract to hedge against the changes in interest rate, जैसे इन दोनों ने स्पेक्यूलेट किया, ठीक है। एक नोशनल अमाउंट जनरली इसमें होता है कि हम 1 करोड़ रुपए के उसके हिसाब से, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ 1 करोड़ रुपीज मनी बिटवीन दीज टू पार्टीज, दैट इज एक आपका जैसे हमने बनाया कि 1 करोड़ के हिसाब से हम पे आउट करेंगे, तो वो आपका, ठीक है। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन इंटरेस्ट बेयरिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कैश सेटल और इट कैन बी through delivery of underlying security like future. This agreement has long position to receive the interest and on a notional amount and short position is to pay the amount, ठीक है। जैसे A is in long position and sell position में आपका जो B था वो आपका पे करने के लिए रेडी हुआ था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, अदरवाइज काफी ज्यादा हो जाएगा एकदम से, ठीक है। तो डेरिवेटिव हमने स्टार्ट किया, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो इतना सबको समझ में आया होगा। और कल आपका आई विल टेक वन मोर सेशन बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर यूनिट, ठीक है, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पज। सो इन नेक्स्ट सेशन वी विल कवर द रिमेनिंग एस्पेक्ट, ठीक है। तो इसके जो रिमेनिंग पार्ट है आपका फ्यूचर, फ्यूचर हमने पढ़ा है, फ्यूचर, फॉरवर्ड, ऑप्शन, स्वैप्स, आपका ये तीनों और उनसे रिलेटेड जो डिटेल एरियाज हैं उन सबको हम लोग आपका डिस्कस करेंगे, काफी अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी बहुत सारी स्लाइड्स भी आपका बची है, ठीक है, क्योंकि देखो सारा खेल है आपका टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स का, ठीक है। और वो आपने अच्छे से समझ लिया, दैट मीन्स आने वाले एग्जामिनेशन में आपकी बहुत अच्छी, मतलब एटलीस्ट 2 मार्क्स आपका, डाउन साइड 2 मार्क्स में बोल रहा हूँ, ठीक है। और जिनका रिस्क मैनेजमेंट सब्जेक्ट है तो उनके लिए तो 5-6 मार्क्स, ठीक है। तो एक बार बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, कोई भी अगर आपका मतलब क्वेश्चन किसी भी तरीके से हो तो आप उस चीज को सॉल्व कर पाए, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉय द सेशन, कैसा लगा सेशन जरूर बताएं कमेंट्स के थ्रू। एंड इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरीज होती हैं, कुछ भी आपका है, सो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप and you can connect with us, right? So guys, this is it from my side. Thank you for joining this session. Bye bye, take care all, have a nice day. Thank you.